वाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोय। वाह वाह अगम अथाह है, वाह वाह सच्चा सोए। वाह वाह वे प्रवाह है, वाह वाह करे सो होए। वाह वाह अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोय। लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। ज्यों कांची उपदेश होए, मानस मरती बार। जय जावंती महला नावा, बीत जह जन्म अकाज रे। निस दिन सुन कै पुराण, समझत नह रे अजान। काल तो पहुँच्यो आन, कहाँ जह पाज रे। रहाओ अस्थिर जो मन्यो देह, सो तो तेरो होए है खेह। क्यों ना हर को नाम ले, मूर्ख निलाज रे। राम भगत हिये आन, छाड़ दे तै मन को मान। नानक जन एह बखान, जग मह बिराज रे। राम भगत हिये आन, छाड़ दे तै मन को मान। नानक जन एह बखान, जग मह बिराज रे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय जावंती राग गुरु तेग बहादुर साहब जी दे उचारण किए हुए इस राग दे अंदर पावन 4 शब्द जिन्हां दी लड़ीवार कथा
9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਔਰ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ। 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮ ਅਸਾੜੀ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਕਮਨ ਕਮਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕਾਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੀ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਜਾ। ਧੰਨ 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 ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 4 ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਦੇਵਨ ਹਾਰੇ ਦੇ ਦਿਆ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਵਨ ਹਾਰੇ ਦੇ ਦਿਆ, ਦੀਨੀ ਮਾਨਸ ਦੇਹ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੱਥ ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਅਵਸਰ, ਅਵਸਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਤੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੌਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਵਕਤ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕਹਿ ਹਾਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਮਲਾ ਨੇ ਕੂਕ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਤਾ, ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਬੇੜਾ ਕਪਰਵਾਤ, ਪਈ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੇੜੀ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ, ਘੁੰਮਣ ਕੇਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਰੰਗ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜਾ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਟਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਰੰਗ ਫਿਰ ਜਿਸਨੇ ਲੈਣਾ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਿਲਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਾੜਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ। ਹੁਣ ਰੰਗ ਚਾੜਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਚੜਦਾ। ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਚੜਿਆ, ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਲੋਭ ਦਾ, ਪਾ ਲੱਗ ਗਈ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਸੇਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਜੋਹਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪੋਟਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਹੀਰੇ ਨੇ। बाजार गया, चाचे को ले गया, कहने लगा चाचा जी ये हीरे बेच दे, ये कम करिए। कहने लगा ठहर जाओ, अजय मंदा, कल तो दुकान ते आया कर। 6 महीने गया, पछाण आ गई, ये हीरा खोटा है खरा। मां नू कहने लगा लिया, पोटली कड्डी, सारी सुट दिती। कहने लगा फटक कच इकट्ठा कीता ही हीरा एक भी नहीं। मैं तुहानू ये तां सुनाया जिन्हां नू हीरे समझ के अवगुणां नू इकट्ठे करने आ। जिस दिन गुरु अख दे देंदा वेखण वाली, बंदा कहंदा ओहो ये की हो गया। रैन गवाई सोए कह, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। सच जे बाहर भटकते रहिए तो गल वखरी है। जिस दिन ध्यान अपने वाल आ पिया ना, अपने आप नू वेखिया, जिन्हों कहा आप नड़े गिरीवान, मैं सिर नीवा कर देख, पछतावे तो बिना पल्ले कुछ नहीं रहना। बंदा हैरान हो जाएगा, मैं कमाई ये कीती है कि तन रोगां नाल भर लिया ते मन पापां नाल भर ले। मन विच अवगण ही अवगण, गुण ते है ही नहीं। सब अवगण, मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा हो। मन नू खोजिया अवगणा तो बिना निकलदा ही कुछ नहीं। बुरियां बुरियां यादां, पैड़े पैड़े ख्याल, अवगण ही अवगण। तां नहीं ठीक हुंदा। जिस दा मन रोगी होवे, तन भी किथे ठीक। तन रोगां नाल भर लिया, मन पापां नाल भर लिया। दाग दोष मोह चलिया लाज, दाग ते एक ही बुरा लगदा। चेहरे ते दाग ही दा, कालख ही कालख लगी होवे, केड़ी सोसाइटी प्रवान करेगी। कहणगे भलिया मूंह ते धोया। रब दी दरगाह में जाना है और पापां दे दाग, दाग दोष, दोषां दे दाग मूंह चलिया लाए, दरगाह बैसन ना ही जाए। उत्थे बहन लई थां नहीं मिलदे। सब अवगन, मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप न बंके नैना, ना कुल ढंग न मीठे बहना, कुछ भी ते पल्ले नहीं। जे वेखा मैं अपने वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, कुछ भी नहीं। अवगन कट्ठे कीते ने। पंड जड़ी बने से वैसे गठड़ी पुराने बंदे, अज ते वधिया अटैची ब्रीफ केस लैके चलदे हो। पुराने की हुंदा सी, छोटी जी गठड़ी बन्नी होनी, उस विच ही सब कुछ हुंदा सी। साहब कहंदे ने लोक अवगना की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोई। बंदे दे गंढ नू फुलो ते निकलदे ने दुख, किस पे खोलो गंठड़ी, दुखी भरे आया। दुख कियां पंडा खुलियां, थोड़े नहीं पंडा। दुख कियां पंडा खुलियां, सुख ना निकले कोई, सुख ते निकले ही नहीं, दुख ही दुख। लोक अवगना की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजा कोई। गुण का गाहक नानका, विरला कोई होए। अवगण कट्ठे कर ले। एक पंक्ति होर सुनो। जाना रब दे घर, जाना गुरु दे घर, जाना परमात्मा कोल, ते पांडे अवगणा दी लैके। अवगण बांध चले, दुख आगे, सुख ते साज संभाले। नानक जिसनों ए मन दिया, जन्म जन्म मरण प्रभ नाले। उस दे नाल है जीवन मरण, जिसनों ए मन दिता है ते फिर अवगणा नू छड्ड दे। ये अवगण इकट्ठे क्यों हो गए, कारण की है। सतगुर पोष न मार्ग चाले, सूती रहन विहाने। रस्ते जड़ा जाना सी, गुरु नू पुछ लेना सी, ये जांदा भी है कि नहीं। रस्ते दा पता ना होवे, सियाणे बंदे कहंदे ने अज भी गड्डी उत्थे ही रोक लै।
फुट भी अगे ना जा, हो सकता गलत होवे, की फायदा जानदा। कोई चौंक आ गया, तेनू नहीं पता कि रस्ता केड़ा है, सियाणे नू पुछ लै, एवें तुरिया जाए, नहीं रुक जा। सतगुर पोष ना मार्ग चाले, सोती रहन विहाणी। भटकदी रही, रस्ता ठीक मिलिया नहीं, नानक बाल तन रंडेपा, बिन फिर धन कुमलै नहीं। गुरु नू जाके पुछया, सतगुरु मैनू मार्ग दसो। उन्होंने कहा आ दसा। पुले मार्ग जिन्हें बताया, पुले होए नू रस्ता दस दिता। ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारै, बस रह हिरदे गुर चरण प्यारे। उन्हें कहा तेनू दसा, तू लीन ते जरूर है काम विच, क्रोध विच। लीन होना सी गुरु दे शब्द विच, लीन होना सी परमात्मा विच। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। एक बचन इत्थे होर ध्यान च ले लेना, कोई साडे हथ बन देवे, नरड़ देवे, पैर बन देवे, असी आप नहीं खोल सकते। क्योंकि जो भी जेड़ी गंढ तुसी खोलनी है, हथां नाल ही खोलनी है, ते हथ तुहाडे बन दिते ने, खोलोगे किस नाल? हथ कोई बन देवे, पैर बन देवे, आप नहीं उड़ीकने, कोई आके खोले। पर ये जेड़े बंधन ने ना मन दे बिल्कुल उल्ट ने, किसे नहीं बन्ने, आपे पाए, आप ही पाए ने ते आप ही खोलने ने। गुरु कहते ने पाए किवें ने? रब दा पल्ला छड्ड दिता, गुरु दी गल मनी कोई नहीं, गुरु दा बचन सुनिया ही नहीं पहले। जे सुनिया है, सुन के मन्निया कोई नहीं। मन मर्जी कीते, मन मर्जी नाल बंधन पै गया। हुण टंग कोई है, गुरु दी मत लै लै, बंधन खुल जाणगे। अवगणा नू छड्ड दे, गुरु दा बचन सुन, गुरु दा बचन सुने। अवगणा नू छड्ड दे, मैं इसे गल नू कहा। गुरु उपदेश देंदा, सिख मनदा। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हटे। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड भागे है। जे गुरु दी गल ना सुनी, ध्यान नाल ना सुनी, ना मन्नी, दिन ते बतीत हो जाएगा कि ये सच नहीं। तुसी गुरुद्वारे आए हो, तुहाडा भी दिन बतीत हो जाएगा, जेड़े नहीं आए उन्हां दा भी हो जाएगा। जिन्ना सेवा कीती उन्हां दा भी हो जाएगा, जिन्ना नहीं कीती दिन ते उन्हां दा भी लंघ जाएगा। एक दिन नहीं जेड़े कदी भी नहीं गए, कदी बाणी नहीं सुनी, समा ते उन्हां दा भी बतीत हो जाएगा। पर एक फर्क है, एक ने काम किया उन्होंने मजदूरी मिली, एक वेला रहा उसनूं कुछ नहीं मिलिया, पछतावे तो बिना कुछ नहीं। एक ऐसा है दिन ते बतीत होवेगा, सफला होवेगा, रात बतीत होवेगी, सफली होवेगी। उस दी पंड विच गुण होणगे। सारे आओ बड़े ध्यान नाल इस बचन नूं सुनो। गंढ जदों खुलेगी ते की निकलेगा? गुरु नानक देव जी दा एक सलोक है, कहंदे ने रब दे प्यारिया थोड़ा जिहा धन घर विच होवे, जे ज्यादा होवे हीरे मोती, हुण पहरेदार खड़ा करना, पहरेदारां ते भी नहीं, आप कुंडे वेखना है, लॉक है, ध्यान नाल दरवाजे बंद ने। पर जिथे असल हीरे ने उथे तू दरबानी कीती कोई नहीं। चोर अंदर सन, उन्हां तो सुचेत होया कोई नहीं। उन्हां कहा इत्थे कोई तनख्वाहदार दरबान काम नहीं करेगा। ये बचन हिरदे च लिखण वाला ओके, पैसे दिओ ते घर काम करा लो, नौकर मिलते हैं, खलोते रहणगे गन फड़ के सारी रात दिन। भांडे मंजवा लो, भांडे मांजन वाले मिल जाणगे, फर्श साफ करा लो, कपड़े धोवा लो,
पर तुहाडे मन की रखवाली करने वाला कोई नौकर नहीं मिलना। जेड़ा मन करके सुचेत करे बिल्कुल नहीं, ये आप करना पैना। ये काम एक ऐसा है जेड़ा किसे नूं सौंपण वाला नहीं। जे सौंपदा कोई ते नादान है। दिल दरबानी जो करे, दरबानी हुंदी चौकीदारी पहरेदारी। दिल दी चौकीदारी करनी की है, घर दी चौकीदारी की है कि कोई चोर ना आ जाए, लुटिया ना जावा। दिल दी चौकीदारी है कि अंदरों शुभ गुण ना लुटे जान। एक बुरा विचार आ गया, तेरा सब कुछ लुट के लै जाएगा। चोरी का विचार आ गया, ईमानदारी ते गई। लोभ का विचार आ गया, संतोख नूं ते लुट के लै जाएगा। जहर का कोई विचार आ गया, तेरा अमृत लुट के लै जा। ऐसा लिखे है पातशाह ने। इस देही अंदर 5 चोर बसा है। चोर बाहरों ही आने होण, चलो ध्यान रखिए कि अंदर टप के आया दरवाजे राही, अंदर ही चोर बैठे होण ते उन्हां दा की करिए। घर दे ही चोर होण। इस देह ही अंदर 1 2 3 नहीं 5 चोर बसा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूट है। मनमुख नहीं बूझे कोई ना सुने पुकारा। मनमुख बंदा समझदा नहीं, लुटिया जा रहा है। गुरु ने कीता सुचेत। कहते ने मन मेरे अणदिन जाग हर चेत। अपनी खेती राख ले कूंज पड़ेगे खेत। सुचेत हो जा। वो कहते ने नहीं तो लुटिया जाएगा। दुनिया लुटी जा रही है, रौला पै रहा है, वेद बोल रहे ने, शास्त्र बोल रहा है, धार्मिक ग्रंथ सारे पुकार। एक शब्द है, दुनिया होशियार, दुनिया बड़ा चतर, बहुत संसार सियाणा है। दुनिया होशियार बेदार, जागत मुसीयत हो रहे भाई। जागदे पे हो तां भी लुटे जा रहे हो। निगम होशियार दे पेखत, निगम होशियार पहरुआ पेखत जम ले जाई। तू लुटिया जा रहा, उसका कारण है तू जागया जरूर है माया प्रति। जागया जरूर है अपनी संपत्ति दे पति। जागया है संसार पति। धर्म वाले पासों सुता पे, उस पासे सुता। सुचेत है बुराइयां वल, जागया है अवगुणा वल। गुणा वालों सुता पे है, जाग जा सुचेत हो जा। दिल दरबानी जो करे दरवेशी दिल रास। इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। पर तेरी गंढ विच है कि कदी खोल के वेखिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब सानू सुचेत कर रहे ने। कहते ने जे तेरी उम्र 60 साल हो गई है, कदी ये ध्यान किया है कि मैं खटिया की ते गवाया के। वैसे खिमा करना जे आख्या जाए ना खटिया की गवाया की, बैंक वाल ध्यान जाता है फौरन। अकाउंट वेखा अमाउंट किन्ना के मेरा, मैं नुकसान किन्ना कीता। सिर्फ धन का ध्यान है कि मैं खटिया की ते गवाया की। धन ने हो जिन्ना अंदर भी ध्यान किया, मैं खटिया की ते गवाया की। एक दिहाड़ी का हिसाब रखना शुरू करिए। जिहड़ा हुण मैं बचन करन लगा तुहाडे नाल, इस वाले उचेचा तवज्जो ते ध्यान देना। दिहाड़ी विच कल दा दिन जिहड़ा बतीत होया, मैं असीसां किन्नियां लईआं ते बददुआवां किन्नियां लईआं। किन्ने क बंदियां ने मैनू आख्या जा तेरा कख ना रहे, तू नरकां नूं जाए। किन्नियां ने मैनू बददुआवां दित्तियां। किन्नियां दा मैं बुरा कीता ते किन्नियां ने कहा परमात्मा इहदा भला करना। जीवन विच जिसने असीसां लै लईआं उसने ते खटिया। बददुआ किसे कोलों निकली है, समझ लेना पाप हो गया। किसे दा दिल ही दुखा देता। गरीब को मत सता, वो दिल से रो देगा। उसके मालिक को खबर हुई तो जड़ से खो देगा।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਧੰਨ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਤੇ ਗਵਾਇਆ ਕੀ, ਦੱਸ ਬਤਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਿਆ ਜੋ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਗਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਵਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ ਅਵਗਣ ਸਾਰੇ ਗਵਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ। वाए बर नफसे के बेहूदा गुजस्ते अल गया से अज गफल ते माल गया। कहते ने करोड़ों रुपए चले जान ते मैनू हौका नहीं मैं भरदा, एक सवास उसकी याद तो बिना चला जाए ते मुंह निकलदा ओहो बड़ा घाटा पै गया, मैं बहुत कुछ गवा लिया। एक सवास साढ़े ते हजारां ही चले जाते, उम्र ही सारी बते कदी हौका नहीं निकलता, कदी नहीं कहते ये की होया। मैं हीरा गवा बैठा, रैन गवाई सोए कह, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। वो कहते ने तोबा साड़ी सुस्ती तो इन्ने नगले, इन्ने गाफल, इन्ने हीरे गवा बैठे आ। सतगुरु कहते ने अगों सुचेत रहो, सानू सबनू कहते ने। हुण पातशाह ने गुरु तेग बहादुर साहब इन्ने सुचेत ने, कहते ने रंग अजेब दुनिया भी सौदा कर दे। हर बंदा चाहता कि जो मैं लगा रहा ना लगावा थोड़ा ते खट्टा ज्यादा। तू कह रहा ना इस्लाम धारण कर लो या करामात विखाओ, छड़ देंगा नहीं तो मार देंगा। उन्होंने कहा सी राम राय जिम तुमरा पोता, सदा शाह अनुसारी होता, जिम हजरत तुम ते करवावे, करो भले पेख सुख पा। जिमें शाह कहता करी जाओ। कहन लगे सौदा मैं भी करांगा, जे अज मैं जान बचा लवां ते मेरी कौम कायरां दी कौम होवेगी, जान बचा के भजन वाली होवेगी। अज मैं सिर वार देंगा ते आउण वाले 1.25 लाख ही होणगे। अज मैं शहीदी पा जावांगा, आउण वाले सिख योधे होणगे, वो भगत होणगे, सूरमे होणगे, शरीरक मोह तो उच्चे होणगे। उन्होंने एक एक क्षण जिहड़ा वो नहीं गवाया। एक हिसाब लाओ, मौत सामने खड़े होवे ते बंदा जिहड़ा है वो कहंदा कोई काम कर लवां। मैनू एक बड़ी सुंदर साखी याद आई, आप नाल सांझी करां। एक साधु नूं पुछया कि नौजवान ने, कहन लगा बाबा जी आ जिहड़ियां अखां बंद करदे हो, कुछ बुल हिलदे ने, पखंडते नहीं तुहाडा सारा। कहन लगे तैनू किवें पता? कहन लगे हर बंदे दे विच मन है ते मन च विचारां ते कुछ है, ढेर लगा होवे पदार्थां दा रस कोई ना होवे, ये किवें? कहन लगे बेटा सुन, तेनू जवाब दिया पर सच है कि ठीक इसे टाइम ते 8वें दिन तेरी मौत है। 8वें दिन मर जाएगा। हुण दस। दौड़िया घर गया, जाके चादर थले विछा ली। एक परंपरा सी जिहड़ा मरन लगा होवे उहनूं भुंजे ला दीदा सी। ते कहन लगे वो ये की? कहन लगा जी 8 ही दिन तुसीं भी ते भुंजे लाउणा, मैं पहले ही पै गई। कह दिता महापुरखा 8वें दिन मर जाना, ना कुछ खादा ना पीता, ना कोई गल करे ना कोई काम कीता, 8वें दिन वो आ गया।
कहने लगा आ गए हो मेरी अरदास करन लई? कहन लगे अरदास करन लई नहीं समझाउण लई आया भाई। सुन, इन्हां 8 दिनां विच कोई मंदी विचार आई? कहन लगा कोई नहीं। कहन लगे कोई रस कस दा कोई ख्याल? कहन लगे कोई नहीं। कोई वैर भाव? कहन लगा किथे? बहुतिआं नूं सद के मुआफी मंग लई है, करजा जिहड़ा देना सी दे दिता। कहन लगे मरना कोई नहीं। तेरे प्रश्न का उत्तर से मौत अजे दूर, 8वें दिन ते पहले ही सब कुछ भुल गया। पर गुरु तेग बहादुर साहब तुसी धन हो। जलाद तलवार लैके सामने खड़ा। मेरे पातशाह कहते ने टाइम थोड़ा जिहा है, टाइम गवाना नहीं, 1 मिनट भी खाली ना जाए, जपजी साहब पढ़ लवां। उन्हां ते मौत सामने खड़ी है, तां भी कहते ने जिन्ना क समा है एवें ना बतीत हो जाए ते साडा सुत्तियां किन्ना बतीत हो जांदा है। मैं ते वेखिआ व्यर्थ गल्लां विच जिन्ना गल्लां दी लोड़ ही कोई नहीं, उन्हां लई समा बतीत हो जांदा है। इत्थे बता रहे ने, कहंदे ने जय जयवंती महला नावा बीत जय है। जय है दा अर्थ है जाएगा। बेत जय है, बेत जय है जन्म अकाज। अकाज दा अर्थ हुंदा कि किसे भी कम नहीं आया। जुआं दे बूटे नूं कोई चंगा नहीं कहंदा, कंडे ही कंडे ने। ना उहदी लकड़ी किसे कम आवे, ना उहदी छां को बैठ सके, ना कोई उहनूं फल लगे है, वो भी आया। इत्थे होर बूटे बहुत ने। अरिंड दा बूटा किसे कम नहीं ओदी लकड़ी आउंदी, कंडे ही कंडे। कहंदे ने बंदे तेरे विच भी अवगण ही अवगण होण, चुआं दे बूटे वर्गा हो, बुआड़ तिल होवे। जिवें एक बचन है गुरु अंगद देव जी दा, नानक गुरु न चेतनी मन अपने सोचेत, छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत। खेते अंदर छुटे कहो नानक सो ना, फलियां फुलियां बपड़े भी तन विच सवा। तिलां वांगू हुंदा। ये जेड़े निसफल बंदे ने वो भी बंदियां वर्गे ही जापते ने। चेहरा भी कई बारी बड़ा सोहना हुंदा, मिठ बोले बड़े हुंदे ने, नीयत बड़ी भैड़ी हुंदी। एक आलम ने तां ही कहा सी, वो कहंदे ने इहनूं कहंदे बहुत बुरा बंदा है, चेहरा तो बड़ा सोहना, रंग बड़ा सोहना, वेखण नूं सोहना जापदा, ये मिठ बोला भी है, बड़ी निवनी खिवनी, इहनूं भैड़ा क्यों कहंदे हो, बुरा क्यों कहंदे हो? कहण लगा सोहना। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, ना ते दी सूरत बुरी है, सुभाव भी ठीक है। बुरा वो है जिसकी के नीयत बुरी है, इहदी नीयत बहुत भैड़ी है। ये मिठा बोलदा लोकां नूं ठगण वास्ते, अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गा। श्यामलम मदन मनुख्यं, बड़ा सोहना होवे, मिठा बोलन वाला होवे, हृदय भूम वैर ने, पर हिरदे भूमि दे विच वैर दा बीज होवे। कहंदे ने निवंत खवंत हंत मिथया, निवना खिवना उहदा मिथया। चेतन संत सुवजन संत सज्जन सुचेत रह। ये बंदा बुरा क्यों है? इसकी नीयत बुरी है, कालख है, व्यर्थ है, किसे काम नहीं। छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत, बीत जय है, बीत जय है जन्म अकाज। सरन जाम लाग भव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै। हुण किवें व्यर्थ है? उपराला कीता जन्म व्यर्थ ना जाए, किसी धार्मिक स्थान ते चला जावां। लोकी कहंदे ने जन्म व्यर्थ जाएगा, कोई पाठ सुन लवां, पुराण सुन लवां। सतगुरु कहंदे ने सुन ही लिया ते सुन के आ गया। बचपन च एक कथा मैं सुनी सी बजुर्गों कोलों, तुहानूं सुणा दे हां, सुचेत हो जाइए तां सुणा रहे हां। बाणिया जांदा सी कथा सुन, रोजाना नेम नाल, मींह वरदा होवे तां भी जाण। उन्होंने किसे दस दिता कथा का फल बड़ा हुंदा है, ते फल की हुंदा है कोई पता नहीं सी, जाना ते सुन के आ जाना। एक दिन कहन लगा बेटा मैं बाहर जाना ते फल ना किते अध च टुट जाए, मेरे थां तू जाए। करदे सन ये भी
गंगा को चले है, मेरे हिस्से दियां भी 2 डुबकियां लावी, वो फल मैनू मिल जाएगा। जा कथा तू सुनिया। बच्चा बच्चा बेचारा, बच्चे निरछल बड़े चंगे होंदे ने, भोले भाले। पंडित ने किते कह दिता ते गां गरीब नूं नहीं मारना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आ गया दुकान अज इन्हें खोली, वड़ेवां दे बोरियां बाहर रखियां सन। गऊ माता जी तुरे आओ, वो सीधी आके वड़ेवियां दी बोरी ते लगे, कपाह दे बीज वड़ेवे। कहने लगा छको माता जी, सुन के आया कथा। उन्हें बोरी वेली कर देती। आया बाणिया, इन्ना गुस्सा चढ़िया, फड़ी डांग 2-4 गां नूं मारियां। कहने लगा ये की कीता ही? कहने लगा जी कथा दा फल। कथा सुन के आया। उन्हें आख्या, कहने लगा कमलिया उत्थे ही सुट आई दी है, इनू नाल ले आइए तो उजड़ जावांगे। अज तक मैं ना लैके आया, कथा नाल ले आया कर, घर तक नहीं ले आई दी। इहो गल सतगुरु इत्थे कह रहे ने। कहते ने निस दिन सुन के पुराण, 18 पुराण ने, 18 ते इन्हां उप पुराण भी होर हैं। इन्हां विचों एक पुराण बड़ा प्रसिद्ध है, सब तो ज्यादा, क्योंकि हिंदू वीर जदों कोई चढ़ाई करदा उसदे घर ओहदा पाठ, ओहदी कथा होंदी, ओ गरुड़ पुराण। वो की है कि गरुड़ पुछदा विष्णु नूं अगे की हुंदा मरण तो बाद, ते फिर सारा हाल दसदा है कि बंदा किवें जांदा, जम किवें मिलदा, ओहदा लेखा किवें हुंदा। साहब कहंदे ने सुन भी लिया, पर तू मौत नूं मन्निया कि मैं मरना। निस दिन सुन के पुराण, समझत न रहे जान, या ते मरना ही मन लैंदा कि मौत याद है ते बुरा करना छड्ड देंदा। रब याद आ जांदा। सतगुर सानू भी सुचेत किया वा। कहते ने पोथियां निरियां सुनो ही ना कमाओ। श्री राग दा शब्द है, पोथे पुराण कमाइए, पाओ वट्टी ये तन पाइए। इस नाल सुनन नाल हुण की होवेगा? जो सुनदे हो गुरु दा रब दा भै जागेगा, पाओ मन च आ जाएगा, पाओ दी बट्टी हो जाएगी। ते फिर जीवन विचों झूठ छड्ड देंगे, सच दी अग्नि लगेगी। सच बूझने आन जलाइए, ये तेल दीवा यों जले कर चानन साहिब ताओ मैले। जिस हिरदे विच रब दा भौ नहीं, भौ दी वट्टी नहीं, सच नहीं, उसने की सुनिया? सुन के भी ना सुनिया। सुनना से निस दिन सुन के पुराण, निस रात दिन दिन सुन के पुराणा नूं सुन के, धर्म ग्रंथां नूं सुन के करन वाला काम से मन समझदा समझत नहीं रहा। जां भुल्लां ते फिर ओहो ही ने ਜਿਹੜੀਆਂ कल कीतियां ओह अज कीतियां। हुण जिहड़ा झूठ बिना कथा तो कबूलदा सी, ओह कथा सुन के भी उन्ना ही बोलिया। गलतियां उत्थे रहियां, भुल्लां उन्नियां ही रहियां, उन्हां विच कोई फर्क नहीं। सच है करदा बंदा एक दा वजन बड़ा वध के ते गया डॉक्टर कोल। कहन लगा रोटियां किन्नियां खाना? कहन लगा जी 10 सवेरे, 10 शाम ते 10 दोपहर। कहन लगा 30 रोटियां घटा, 15 कर, 15 कर दित्तियां वजन। फिर उत्थे ही कहन लगा होर घटा, इंज कर तू छड्ड बाकी सब कुछ, 2 सवेरे 2 शाम 2 राती। कहन लगा ये ते बन ही नहीं सकतियां। कहन लगे क्यों? कहने लगा जी आटा उन्ना ही लाया है, सिर्फ रोटियां की गिनती घटाई है। आटा जड़ा उन्ने दा उन्ना ही। यकीन जानना बंदे दा आटा नहीं घटदा पिया। गुरु साहब कहते ने आटा घटा। करन वाला काम यह है कि हुण पुराण सुन ले ते पाप मुक जान, धर्म ग्रंथ सुन ले ते अवगन मुक जान। अवगन उन्ने ही बाहर निकलदे निंदिया जिन्नी कल कीती उन्नी, जो बुरा सोचिया उन्ना, वकार ओने दे ओने। निस दिन सुन के पुराण, समझत न रेया जान, काल तो पहुंचे आन। हुण तेरे इंज करदियां 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 वैसे बंदे दा हालत जड़ी है ना, 7 पुरुषां लिखी है, वो मैनू जचदी है। वो कहंदे ने इहदी हालत है एक कदम अगे पुटदा है ते एक पिछे। थोड़ा जिहा पुण्य कर लिया, थोड़ा पाप कर लिया।
थोड़ा जिहा सच बोल लिया, थोड़ा झूठ बोल लिया। ये इंज राज मिस्त्री बना रहे कंध, एक इट रख दी, दूसरी पुट लई, ते दीवार कदों बनेगी? एक कदम अगे एक कदम पिछे, बंदे पहुंचेगा किथे? एक पासे लग। जे तू एक पासे लगे थोड़ा भी तुरे पहुंच जाएगा, पर नहीं, जिन्ना क पुण्य उन्ना ही पाप। ये ते किसे पासे निस दिन सुन के पुराण समझत न रहे जान, ते करदियां करदियां मौत आ गई। पंक्ति किन्ना सानू टुंब के जगा रही है। कहते ने जो दिन आमा है, जेड़े दिन आउंदे ने, दिन ते 7 ही ने, वार ने आ जाएगा। किन्ने बुधवार चले गए ते किन्ने वीरवार निकल गए। जो दिन आमा है सो दिन जा ही चलेगा। करना कोच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना। दूर गमन सिर ऊपर मरना, सिर ते है मौत जाना है दूर। तर बंदा तुरन वास्ते तैयार नहीं, अजे रह ही कर रहे है। कुछ करा के ना, अमृत पान करा के ना, गुरुद्वारे जावा के ना, बाणी पढ़, फैसला ही नहीं हो रहा की करा की ना करा। कहते एक पासे लग। निस दिन सुन के पुराण समझत न रे जान, काल तो पहुंचे आन। जागदा जरूर है, पर जागदा उस वेले जागण दा कोई फायदा नहीं होंदा। कदों? कहत कबीर तबे नर जागै, जम का डंड डंड डंडा मूंड में लग गए। एक वार्ता बड़ी सुंदर लिखी कबीर साहब ने, कमाल कर देती है। कहते ने जम मौत आ गई, उन्हें कहा चल। कहने लगा जी इंज करो, जो लेना देना ना आप कर लेंगे। कई बार ऐसा ना कोई आ जाए फड़न वाला, तो कहने कर लेने। इंज करे कुछ लेना देना, मैं तेनों कुछ दे देना, एक रात ते घटो घट होर दे दे। उन्हें कहा अच्छा जे रात दे दिया तो करेगा के? मौत ने सोचिया होवेगा शायद चौंकड़ा मार के बैठ जाएगा, ते रब दा नाम जपेगा कि एक रात मिल गई, सारी रात नाम जप लवां, क्योंकि जाना नहीं। जीवन दियां बड़ियां आदतां पिछे छड़ दियां। कहने लगे रात दे दियां की करेगा? कहने लगा लेना देना जिन्ना है ना लोगों कोलों, वो सारा उड़ा लांगा। बस ये लिखिया उन्हें बाणी विच, ये रात एक दे दियो, ये करांगा। करो अरदास गांव किश बाकी। बड़े पैसे लोगों को लेने, मर गया ते बच्चियां नूं किसे नहीं देने। करो अरदास गांव किश बाके, लिहो नवेरे आज की राती, लोकां दी चमड़ी उधेड़ के मैं कढ लांगा। मैनू एक रात दे दिओ, भलिया रात मिलदा ते नाम जप लै। रात मिल, धन ने वो बंदे जिन्हां समा अकार्थ नहीं जान दिता, समा व्यर्थ नहीं जान दिता, गवाया नहीं। निस दिन सुन के पुराण समझत न रे अजान, काल तो पहुंच्यो आन, कहां जाए भादर। इस कोलों भज के किथे जाएगा? दौड़िया ते छड्डना नहीं। वो कथा सुनी होवेगी कि सारे शिव नूं मिलन गए ते जम भी गया उहदी सवारी झोटे दी, ते विष्णु भी गए उन्हां दी सवारी गरड दे। गढ़ बाहर सवारियां ते गड्डियां ते बाहर ही खड़ियां करके आउंदे ना, उन्हां सवारियां बाहर छड्डियां, अंदर गए। एक कबूतर वल जम ने वेखिया ते सहम गया ते गढ़। हुण कबूतर है ते पंखी बेचारा हम जात, एक भाई अपना भाई उड़न वाला। कहने लगा सहमिया क्यों? कहने लगा जी जम ने वेखिया, जापदा मौत आई। कहने लगा छड्ड के आवां। जम दा बाप भी ना उत्थे जा सके। उड्डिया बड़ी दूर रुख की खोड़ च लुका के आया। कहने लगा इत्थे नहीं आएगा। वापस आया, जम फिर आ गया। गढ़ ने वेखिया, कहने लगा की वेख रहे हैं? इत्थे कबूतर सी। कहने लगा तेनू नहीं लभना, बड़ी दूर छड्ड के आया। कहने लगा रुख की खोड़ च पाए? हाँ। कहने लगा मैं वेख रहा सा मौत इहदी उत्थे आई है, ये इत्थे बैठा है, ते खेड़ किवें बनेगी? मेरा काम तू कर रहा है, उत्थे ही ते बिल्ली है जिसने उन्हें खाना। मैं कथा पढ़ी, कमाल है। दौड़ने जिन्ना दौड़ 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 के मौत आउंदी नहीं, मौत दे मुंह च आपे ही पै जाने।
ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਥਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਭਾਜ ਰੇ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਹਾਓ ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇ ਸੋ ਤੋ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਮੰਨਣਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ। ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਮਣ ਲੱਗੀ ਦੇ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਸਹਿ ਵਰਿਆ ਜੀਵਨਾ ਭੀਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇ ਸੋ ਤੋਂ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਾ ਚੂੰਡ ਨਾ ਪਿੰਜਰਾ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜੇ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਸ ਕਿਤੇ ਲਾਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਸ ਤੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮਾਸ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਠ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ ਨਾ 20-40 ਦਿਨ, ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਕਾਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਵੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੋ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਮੂਰਖ ਨ ਲਾਜ। ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਲੱਜ ਬੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਨੂੰਹ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਨੇ ਸ਼ਾਖੇ ਗੁਲ ਲਾ ਕਰ ਕਰੀਬੇ ਆਸ਼ੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਲਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੇ ਸ਼ੌਕੇ ਗੁਲ ਬੋਸੀ ਕੇ ਕਾਂਟੋਂ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਕੰਡੇ ਚੁੱਭ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲਹਿ ਮੂਰਖ ਨਲਾਜ ਰਹੇ। ਮੂਰਖ ਨਲਾਜੇ ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ? ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀ ਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਛਾੜ ਦੇ ਤੈਂ, ਤੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਛਾੜ ਦੇ ਤੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਨ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਓ ਬਰਾਜੋ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੱਤ ਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਸੰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ 4 ਦਿਨ, ਉਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। 4 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵਗਣਾ ਕਰਕੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ ਬਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਧਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਉਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜਿਓ ਹੋ ਸਹਾਇ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੇ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਸਹਾਇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ,
कहते ने गलती तेरी है। वैसे कौमां भी गलती करदियां ने, बंदे भी, बंदे रल के ही कौम बनती है। बंदे सिख रल के ही ते पंथ बनेगा। जे बंदे विचों कट दईए पंथ किथे? बंदे ही कट दईए समाज किथों? व्यक्ति रल के आखिर सब कुछ बनता। इत्थे गल उन्हां पहली कही, जेड़ी कौम माया दा संग करेगी, माया दी शरण विच रहेगी, वो ईमानदार नहीं हो सकते, एक दूसरे प्रति शुभ भावना नहीं हो सकती। निशाना होवेगा माया दा, वो कौम अज भी नहीं कल भी नहीं। कहते ने कि माया को संग त्याग, प्रभ जो की शरण लाग, पहला शब्द। दूसरे शब्द विच कहा है, कहूं कहां बार बार, समझत न क्यों गवार। अपनी अपनी जिद ते जे बैठे रहिए ना, सच्ची गल भी ना मनी है, ना समझी आखी जाए कोई 100 वारी। जदों बंदा अपनी जिद ते बैठा होवे फिर नहीं मनदा। समझत न क्यों गवार, बिनसत न लगे बा। ये शरीर तेरे दा विनाश हो जाना, इनू भले पासे ला, और समगात है। तीसरा शब्द जेड़ा सी उस दे विच कहा, तेरी हालत की होवेगी? करन वाला काम ते तू कीता कोई नहीं, ते मन लवाए मान है विखिया नाल। कहा दारा सुख भयो दीन, ये बहुत जरूरी है। रहतनामियां च लिखिया, मुसले दूती डूमन चेली, विचारन जो फिरे अकेले, अवर जो आन वर्ण की नार, इनस्यों सिंह न करे प्यार। उन्होंने कहा स्त्री दे अधीन हो जाना काम वासना करके, वो कौम चढ़दी कला विच नहीं जा सकती। हरि सिंह नलवे बारे सुनिया, ये एक बाइबल च जिक्र आउंदा है, लगभग वो सूरमे वर्गा। मैं समझदा सा वो ढोल गया, हरि सिंह नलवा नहीं ढोलिया। उहदा नाम सी साइमसन, जोहरा दा रहन वाला सी। एक ने एक बारी संगला ने बन दिता, तुड़ा जांदा सी। ये खोते दी हड्डी इसदा हथियार सी, अनेकां बंदे मार दिते। राज की है, लभदा नहीं सी इहदी शक्ति दा। एक औरत ओने संपर्क बनाया, दलेला उहदा नाम सी। नशे पिया के इहनूं पुछ लिया, राज की? कहन लगा केस, मेरे केस जदों तक काम ने मैनू को हरा नहीं सकता। उन्हें दस दिता, बेहोशी च केस कट दिते, उन्होंने कोलू अगे जो दिता, अन्ना कर दिता, क्योंकि उसका राज लभ गया। हरि सिंह नूं बानो ने कहा सी, तेरे वर्गा पुत्र चाहिदा। कहन लगे देर काहदी है? गुरु ने मैनू कोई अखलाक दिता, मां तेनू समझ लेना, पुत्र मैनू समझ। बाकी गुरु ने जिहड़ी गल कीती है, मैं ते गृहस्थी हाँ, मेरे बाल बच्चे ने। उन्होंने कहा गुरु का सिख जिहड़ा है, अपनी रिश्ते सोरत होए रहतवान जग सिंह जे कही। जिहड़े रहतवान ने कदी भी काम वश हो के ऐसा नहीं, दारा पग भयो दे, दारा सुख भयो दीन। तीसरा शब्द है सी। चौथा अज आ गया है कि कल कल करदे काल ही ना आ जाए। समा बतीत हो जाएगा, अमृत छका भलिया शक। मन दी मनेगा, इन्हें कदी भी नहीं मनना। छलांग लगा जा, पाठ करना शुरू कर, गुरुद्वारे आना है, भला बनना है, अज होना ही बन। वो कहते ने हुणे ही मुक्त हो जा, कौन रोकदा? बंधन आप पाए ने। आज मलावा शेख फरीद, टाकम कुंजड़ियां मनो मचंदड़ियां। पहली गल गुरु दी सुन लईए, सुन के मन लईए, गुरु दे हो जाइए, बल आ जाएगा, बंधन टुट जाएंगे, बंधन टुट जाएंगे, बलवान हो जावांगे। फिर एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। उस दा संग होवेगा जिहड़ा कदी हारदा है। पंथ ना हारिया, ना कदी हारेगा, क्योंकि वो फतेह नाल जुड़िया, वाहिगुरु दी फतेह नाल जुड़िया होया। इत्थे कहा नानक जन ए बखान, जग में बिराज रे। आखिरी पंक्ति, शान नाल रह, इज्जत नाल बह, इज्जत नाल सिर उच्चा करके फिर, पर तां होवेगा। अवगणियारा बंदा सिर उच्चा करके नहीं फिर सकता। अवगणियारा बंदा इज्जत नाल नहीं बह, उत्थे चोर हुंदा।
ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਮਾਨਸੇ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹੈ ਕੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੂੰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। 4 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਨੀਚਤਨ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀਓ। आओ प्यार सहित फतेह के जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग टाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी निघी गोर गुरु परी साध संगत फतेह संग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जजवंती राग ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲੜੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਕੇ
घर घर सिक्खी प्रचार वास्ते जोड़िया जाएगा, ताकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ। 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।